Good morning, dear students. Students, we are doing chapter number 3, change in profit sharing ratio among the existing partners. And we are doing topic accounting treatment of reserves and accumulated profits and losses when there is change in the profit sharing ratio of existing partners. Okay. And first of all, case 1, when reserve and accumulated profit and losses are to be transferred to the partner's capital account. That case we have already discussed in previous lecture. Okay. When reserve and profits and losses, means accumulated profit and losses, we have already discussed this topic that are to be transferred to partners capital account. In this case, at the time of change in the profit sharing ratio, there are, if reserves and accumulated profits are given in existing in the books of the firm, so these should be transferred to the partners capital account. If capitals are fluctuating to capital accounts, if the capitals are fixed, then current account. Okay, in their profit sharing ratio, old profit sharing ratio. Okay, and now today we will discuss case 2. Okay, in case 2, फर्स्ट केस में क्या था कि सिर्फ हमने सारा अमाउंट जो है वो पार्टनर्स के इसमें ट्रांसफर कर दिया, बट इन केस 2 when reserve and accumulated profits when reserves and accumulated profits and losses are not to be transferred to profits to partners capital account. This reserve and accumulated profits and losses are given in your question in liability side or asset side, but condition is that will not transfer to the partners capital account. इस केस में कोई कंडीशन नहीं थी, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो so that's why you can transfer that portion to the partners capital account. But if it is mentioned in your question कि reserves and profit and surplus जो भी losses हैं, that will not to be transferred to the partners capital account. This is the second case. Okay, now today we will discuss this case number 2, accounting treatment when reserve and accumulated profits and losses are not to be transferred to the partner account. Okay, question सेम है, आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस जैसे आपको दिए होते हैं वैसे ही गिवन होंगे आपके क्वेश्चन में, बट सिचुएशंस वी हैव 2 सिचुएशंस, केस 1 एंड केस 2. ओके, एंड क्वेश्चन में मेंशन होगा प्रॉपर्ली, अगर केस 2 है तो मेंशन होगा, अगर केस 1 है तो मेंशन नहीं होगा, देन यू कैन डू केस 1 ऑटोमेटिकली. मतलब ये आपको समझना है कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको केस 1 अप्लाई करना है, बट इफ इट इज मेंशन कि नॉट टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, then you will use this case 2, accounting treatment. आज हम इसकी करेंगे case 2 की. Okay, if in case of change in profit sharing ratio there is reserve and accumulated profits appearing in the balance sheet and partner decide to leave the reserve and surplus or accumulated profits undistributed, means partner नहीं चाहते हैं कि ये जो reserve and जो accumulated profits हैं वो उनके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए, मींस डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, वो नहीं चाहते, मींस वो अनडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो उनको एज इट इज ही रखना चाहते हैं अपनी बैलेंस शीट में. इट विल बी नेसेसरी टू पास द एडजस्टिंग एंट्री, उस केस में लेकिन वो एडजस्टिंग एंट्री हमें करना जरूरी हो जाएगा. एडजस्टमेंट एंट्री मींस बिकॉज एट प्रेजेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आपको पता है कि अभी उनके पास क्या थी, इससे पहले ओल्ड रेशो में वो जो ओल्ड रेशो थी उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनके रिजर्व्स पड़े हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो जो भी अमाउंट उनका पीछे का पड़ा हुआ है ना रिजर्व्स में, वो सब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अभी वो क्या करने जा रहे हैं फ्यूचर में, वो उसको न्यू रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने रेशो को. सो दे विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर सच रिजर्व एंड प्रॉफिट्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब वो इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहेंगे कि जो रिजर्व और प्रॉफिट्स जो भी पड़े हुए हैं वो उनको आगे के टाइम में वो न्यू रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके.
सो हैज द, इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करते थे, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे, सेम वही चीज इसमें हमें करनी है। हम यहाँ पर भी वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कौन पर्सन गेन कर रहा है और कौन कैलकुलेट कर रहा है। जैसे कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था गुडविल का, बिल्कुल सेम वही ट्रीटमेंट है इसमें भी। सो द गेनिंग पार्टनर्स मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स व्हिच इज प्रोपोर्शनेट टू द शेयर गेन्ड बाय हिम। जितना पर्सन ने गेन कर लिया उसके लिए वो कंपनसेट करेगा, किसको करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। जैसे गुडविल में कर रहे थे सेम वही ट्रीटमेंट इसमें अब हम रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में भी करेंगे सेम ट्रीटमेंट। जैसे गुडविल में वो अपना जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो ले रहा था और गेनिंग पार्टनर दे रहा था उसको, सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू द sacrificing partner, right? So for example, suppose A and B, we have two partners, ratio is 2:1 and decide to share profits future in equal proportion। अगर वो आगे फ्यूचर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। So reserve appearing in the balance sheet is 60,000। अगर मान लो आपकी लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स पड़े हैं 60,000 से, ओके, and partners do not want to distribute them, इनको अभी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। सो इन सच केस प्रेजेंट ए इज एंटाइटल्ड टू, यहाँ पर अभी देखिए अगर अकॉर्डिंग टू रेशियो देखें, ए की रेशियो है 2/3 एंड बी है 1/3 अकॉर्डिंग टू, मतलब फर्स्ट केस। अगर हम फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पर इनको प्रोपोर्शनेट अगर मैं बांटू तो 40,000 ए को मिल जाएगा और 20,000 बी को, ओके ओके। आप अब यहाँ क्या होगा कि बट इन फ्यूचर आफ्टर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईच वुड बी एंटाइटल्ड टू। अब जब फ्यूचर में अगर ये अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, फ्यूचर में इनका शेयर क्या होगा, 30,000 इक्वली तो शेयर करेंगे उसके बाद, ठीक है। सो हेंस बी मस्ट, अब यहाँ बी देखो, बी का 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा और ए का 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ बी जो है वो कंपनसेट करेगा, B must compensate A to the extent of 10,000 rupees. Okay, so this amount is proportionate to the share। अब उसका शेयर निकाल लेते हैं कि कितना उसने यहाँ पर शेयर सेक्रीफाइस किया और कितना उसने गेन किया। ये पर्सन जो है 2/3 यहाँ पर ले रहा है और उसको बोलेगा 1/2, तो A पर्सन विल सेक्रीफाइस एंड B पर्सन विल गेन। कितना गेन कर रहा है देख लो, 1/3 माइनस 1/2, ये माइनस करके आ जाएगा -1/6 मीन्स ये गेन कर रहा है। मैंने इस तरह बी का निकाला, ये बी गेनिंग 1/6 शेयर गेन कर रहा है और इतने शेयर के लिए यानी कि 60,000 का 1/6 शेयर, 1/6 ऑफ 60,000 मीन्स ₹10,000। बी विल कंपनसेट, बी को कंपनसेट करना है ये ₹10,000, किसको, ए को। किसके लिए, क्योंकि ए उसको शेयर दे रहा है कितना, 1/6, वो सेक्रीफाइस कर रहा है बी के लिए, राइट। तो यहाँ पर कंपनसेट कौन करेगा, बी, ओके। सो द एंट्री क्या होगी यहाँ पर, जो गेन करता है दैट पर्सन ऑलवेज, हम क्या करते हैं इसको, डेबिट, ओके। So the adjustment for the amount of usually made by passing an adjustment entry wherein B's capital account will be debited and A's capital account will be credited with ₹10,000। तो यहाँ एंट्री रहेगी जो वो क्या है, B's capital account debit to A's capital account with 10,000 rupees, 10,000, 10,000, okay, clear? Next practical portion number 30, page number 3.32, open page number 3.32, we will start now illustration number 3030, okay। I'm reading this statement, students listen carefully. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3 on March 31st, 2021. Their balance sheet showed a general reserve ₹35,000. On that date, they decided to admit Sevak as a new partner and new profit sharing ratio will be 5:3:2.
Record necessary journal entries in the books of the firm under the following circumstance. First of all, first point is when they want to transfer the general reserve to their capital account. तो ये first case है. According to first case, we will distribute general reserve 35,000 to old partners in their old profit sharing ratio. ठीक है. फर्स्ट केस में क्या करते हो आप, जनरल रिजर्व को आप उनकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में उनकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जनरल रिजर्व को. तो एंट्री विल बी इन केस फर्स्ट illustration number 30. Case first. When they want to transfer the general reserve to their capital account, entry will be date is March 31st. General reserve account debit to कितने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर आपको चेक करने हैं, A is capital account to B is capital account. Okay. Amount is 35,000. Just distribute 35,000 in their old ratio. Old ratio was 4:3. 4/7, 3/7. 20,000, 15,000. Okay. Second case, when they don't want to transfer general reserve in their capital accounts, but prefer to record an adjustment entry for the same. जो भी हमने सेकंड केस डिस्कस किया, मींस अब वो ये जो जनरल रिजर्व है इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं जस्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो गिवन है आपके पास 4:3. न्यू रेशियो, अब नए 3 पार्टनर्स है 5:3:2. ओके, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यहां से आपको सैक्रिफाइस और गेन निकल आएगा. और 4/7 यहाँ फर्स्ट में पहले आप कैलकुलेट करिए ए का. एज 4/7 माइनस 5/5 + 3 8 8 + 2 10 5/10 and B's 3/7 minus 3/10. सेवक तो अभी न्यू पार्टनर है, वो तो गेन ही कर रहा है, सो दैट्स व्हाई उसको यहाँ कैलकुलेट करने की नीड नहीं है. 70 10 40 35 5/70 sacrifice. 70 30 minus 21. ओके 7 9/70. बट ये कर रहा है गेन, बिकॉज ये देखो माइनस में आ रहा है 30 - 21. So B gaining 9/70 part, 9/70 share. Okay. Sorry. 30 - 21 is also sacrifice. Both are sacrifice. Gaining सिर्फ यहाँ सेवक कर रहा है. सेवक 2/10 share. Only new partner is gaining. So now the entry will be सेवक, क्योंकि यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, सेवक. तो सेवक will be compensate to A and B. यहाँ जो पर्सन नया पर्सन आया है, ऐड हुआ है, उसकी वजह से इनका शेयर जो है वो कम हुआ है, और वो जो शेयर कम हुआ है वो किसको मिला है, सेवक को. तो ओनली सेवक विल कंपनसेट. ठीक है. सो एंट्री क्या होगी इसमें, सेवक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. यहाँ दो पुराने जो ओल्ड पार्टनर्स है आपके, वो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई भी गेन नहीं कर रहा है इसमें.
right? So entry will be adjustment entry. Note down the entry. Sevak, capital account debit to A's capital account to B's capital account. Okay. Now 14 by means 2 by 10 of 35,000. 2 by 10 of 35,000. 7,000. 7,000 से डेबिट होगा सेविक. ओके एंड एज और बीस की यहाँ पर कैलकुलेट करनी है आपको. 5 by 70 of 35,000 एंड 9 by 70 of 35,000. ये ए और बी की आप कैलकुलेट कर लो. 2,500 एंड 4,500. ओके. Next illustration, illustration number 31. This is same question as illustration number 30. You can do by yourself. 32. In question number 32, illustration number 32, page number 3.34. I'm just reading. A, B, and C are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3:4. Old ratio is given. They decided to share future profits and losses is 4:3:2. New ratio also given. They also decided to record the effect of the following without affecting their books value. तो ये कौन सा केस हुआ? सेकंड केस, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं. मतलब जनरल रिजर्व अगर है तो एज इट इज ही रहेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर है क्वेश्चन में तो एज इट इज रहेगा, मींस कोई इफेक्ट नहीं होगा. दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट, ओनली इफेक्ट शो करना चाहते हैं बट फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू. ओके, मींस अब जनरल रिजर्व गिवन है 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है. इफ क्रेडिट और डेबिट इसमें मेंशन नहीं है सो यू विल टेक एज ए प्रॉफिट. तो इसको आपने इसको प्रॉफिट की तरह ही यहाँ पर लेना है. देन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एसेट साइड में आपके पास गिवन होता है. सो दैट दिस इज द डेबिट बैलेंस 15,000. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री. ओके, दिस इज द केस 2 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में यू विल कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. मींस कैसे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स को आप प्लस करेंगे क्योंकि बोथ आर द क्रेडिट बैलेंस, बट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज द डेबिट बैलेंस. तो यू विल डिडक्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ओके, मींस 40,000 प्लस 20,000 ये आ जाएगा 60, और उसमें से आप माइनस करेंगे 15,000, इट विल बी 45,000. टोटल जो आपने कंसिडर करना है इस क्वेश्चन में, जैसे हम 35,000 यहाँ कंसिडर कर रहे थे जनरल रिजर्व, तो यहाँ आपका जो टोटल कंसिडर होगा वो होगा 45,000 इस क्वेश्चन में. आफ्टर देन यू हैव टू कैलकुलेट सेम ऐसे ही जैसे हमने किए हैं, रेशियोज कैलकुलेट करनी है और उसके बाद जनरल एंट्री आपने पास करनी है. ओके, इलस्ट्रेशन 33 इज आल्सो सेम. यहाँ पर गुडविल भी है तो सो गुडविल आल्सो विल ऐड इन रिजर्व्स. रिजर्व्स में गुडविल भी आप ऐड करके सिंगल एंट्री कर सकते हो, एक ही एंट्री. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 34, पेज नंबर 3.36. ओपन पेज नंबर 3.36. This is the long question. This one 34 question, illustration number 34. Illustration number 34, I'm reading statement. So listen carefully students. Divya and Pooja are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2015, their balance sheet was as under. यहाँ two partners हैं, ratio given है, balance sheet also given in your question of Divya and Pooja as at 31st March 2015. In liability side, creditors, reserves, profit and loss, investment fluctuation fund, and capitals of Divya and Pooja are given. And in asset side, goodwill, land and building, investment, debtors, bills receivable,
cash in hand and advertisement suspense account is given. Okay, are given. So the partners decided that with effect from 1st April 2015, they would share profits and losses equally. अभी आगे के लिए उन्होंने जो फ्यूचर में डिसाइड किया वो रेशियो इक्वल करेंगे अब, ठीक है. ओल्ड रेशियो वाज 3:2 and new ratio will be 1:1. So for this purpose, they decided that investment to be valued at rupees 60,000. So students, first of all, check the investment in asset side. Asset side में देखो investment की value क्या है, 66,000. And अभी market value क्या है नीचे adjustments में 60,000. It means ये क्या हुई है, fall हुई है by 6,000, reduce हुई है. और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में, लायबिलिटी साइड में कितने से गिवन है, 12,600 से, और जो फॉल हुआ है वो 6,000 से हुआ है. तो यू कैन कवर 6,000 फ्रॉम दिस रिजर्व, दिस फंड. आप 6,000 को कवर कर सकते हो इसमें से, क्योंकि ये जो है वो आपके पास रिजर्व जो है, जो फंड बना हुआ है वो आपका ग्रेटर अमाउंट से है, ज्यादा अमाउंट से है. आपको सिर्फ 6,000 ही कवर करना है. So जो बाकी बचेगा 6,600, that will be distributed in partners capital account. जो बाकी अमाउंट बचेगा वो किसमें चला जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अमाउंट में, अकाउंट में. ओके. नेक्स्ट सेकंड इज द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹24,000. दिस इज द गुडविल 24,000. इसकी भी वैल्यूएशन आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. सेम एडजस्टमेंट एंट्रीज के साथ इसको हम करेंगे डिस्कस. नेक्स्ट, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. ओके, जो जनरल रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है आपको, बाकी कोई अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. सो इट मींस जो इसके अलावा अगर कोई और आइटम्स आपके पास लायबिलिटीज में या एसेट्स में गिवन है, उसको आपने कैसे ट्रीट करना है, फर्स्ट केस की तरह. अभी मैंने आपके सामने 2 केसेस मेंशन किए थे. तो मैंने कहा था कि जो सेकंड केस है वो आपके पास हमेशा गिवन होगा, तभी आप उसको फॉलो करेंगे. बट इफ इंफॉर्मेशन मिसिंग अबाउट द अदर थिंग्स, तो देन ऑटोमेटिकली फर्स्ट केस विल बी अप्लाई. ओके, तो आपका जो फर्स्ट केस है इसमें अप्लाई होगा, बाकी चीजों में आप सिर्फ जनरल रिजर्व जो है उसमें आपका सेकंड केस अप्लाई करना है आपको. ओके, और या फिर गुडविल में, क्योंकि गुडविल में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही ऐसा है जिसमें आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करके, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कैलकुलेट करके ये एंट्री करते हो. तो मींस गुडविल को भी ऐसे ट्रीट करना है और जनरल रिजर्व को भी आपने एडजस्टमेंट एंट्री की तरह ट्रीट करना है. तो आप इन दोनों को प्लस करके सिंगल एंट्री करेंगे, दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा. वैल्यूएशन मतलब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा, क्योंकि दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. ओके, सो ऐड जनरल रिजर्व अमाउंट एंड गुडविल अमाउंट, दोनों को ऐड कर लो. 23,400 एंड 24,000 दोनों को प्लस करके इनका आप एडजस्टमेंट एंट्री कर दो. वर्किंग नोट, गुडविल is 24,000, general reserve 23,400. टोटल करो इसका 47,400. ओके, नाउ कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग और जनरल गेनिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास is 3:2 and new ratio 1:1. now कैलकुलेशंस इसकी करते हैं. दिव्या एंड पूजा. दिव्या 3/5 minus 1/2 and पूजा 2/5 minus 1/2. तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसका. 1/10 सेक्रीफाइस एंड 1/10 गेन. माइनस में आ रहा है. हु इज गेनिंग? पूजा. एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग? दिव्या. So पूजा will compensate दिव्या. अब पूजा compensate करेगी दिव्या को, right? तो 147,400 clear है. Means entry will be Pooja's capital account debit
Note down this entry to Divya's capital account by 1/10 share of 47,400. इस अमाउंट का 1/10 करना है, तो 4740 right? Divya has sacrificed, so she will be credited from 1/10 of 47,400, and Pooja has gained 1/10, so she will be debited from 1/10 of 47,400, right? This entry clear to all of. अब जो बाकी चीजें दी हुई है, देखो अब जरा लायबिलिटी साइड में चेक, उसको छोड़ो अभी क्योंकि वो एज इट इज जाएगा लायबिलिटीज में, न्यू बैलेंस शीट में. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. आपको इसमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने, तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में रिवाइज्ड कैपिटल्स भी जाएंगी. ओके, तो अभी कैपिटल में क्या क्या ट्रांसफर होने वाला है, ये तो जो आप दोनों की कैपिटल्स में इफेक्ट है, इस एंट्री को आपने कर दिया. आगे और देखते हैं क्या इफेक्ट आया है. सेकंड देखिए, जनरल रिजर्व हो गया डन. थर्ड आइटम मैं लायबिलिटी साइड चेक कर रही हूँ. फर्स्ट आइटम क्रेडिटर्स एज इट इज जाएगा लायबिलिटीज में. जनरल रिजर्व आपने चेंज नहीं करना है, वो भी एज इट इज बैलेंस शीट में जाएगा नेक्स्ट रिवाइज्ड बैलेंस शीट में, क्योंकि उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट ना करके एडजस्टमेंट एंट्री करी है. थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो केस 1 विल बी अप्लाइड. तो यहाँ आपको फर्स्ट केस अप्लाई करना है, मींस ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशियो, उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपको. Profit and loss account debit to Divya's capital to Pooja's capital account. 4,000. Divide this amount in their old ratio, 3:2. Okay, 2,460. Next, investment fluctuation fund. ये मैंने अभी आपको एंट्री बताई है, तो वही एंट्री यहाँ करेंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट में अभी आप सिर्फ 6,000 से ही चेंजेस आपके जो है उसमें चेंज आया है, फॉल आया है, सो दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट में 6,000 ही शो करेंगे. बाकी जो 6,600 है वो जाएगा पार्टनर्स में, क्रेडिट होगा टू दिव्यास कैपिटल टू पूजास कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो. ओके, 3,960 एंड 2,640. टोटल अमाउंट इज 12,600. डन. नेक्स्ट आइटम कैपिटल्स. कैपिटल्स आपके चेंज होंगे, कैपिटल अकाउंट इसमें बनाना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट एसेट साइड में आ जाओ. गुडविल. गुडविल को हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं. लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो जाएगी अब. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज, डेटर्स एज इट इज, बिल्स रिसीवेबल एज इट इज, कैश इन हैंड एज इट इज, ये सब एज इट इज आपको ट्रांसफर करना है रिवाइज्ड बैलेंस शीट में. लास्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ये आपका जो है जाएगा. ये जो आपकी गुडविल गिवन है इसमें गुड साइड दैट विल आल्सो राइट ऑफ, ये भी राइट ऑफ पार्टनर्स में. तो एंट्री नोट करेंगे. थर्ड फोर्थ एंट्री, दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है. जो गुडविल आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है उसको आप राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में. ठीक है, ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप. कर दो इसको. 9,600, 6,400 एंड 16,000. एंड लास्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. दिस इज ऑल्सो द डेबिट लॉस है, ये भी आपका, ये भी पार्टनर्स नहीं आपको करना है शिफ्ट. तो अगेन दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. इसकी भी एंट्री कर देंगे ओल्ड रेशियो में. तो दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बाय 10,700, 6,420, 4,280. डन. और लास्ट एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं, पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट. नाउ रिवाइज्ड बैलेंस शीट, यू विल मेक रिवाइज्ड बैलेंस शीट. रिवाइज्ड बैलेंस शीट में मैंने बताई दिया आपको जहां जहां चेंज आएगा. अभी आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है वर्किंग नोट में. जो भी कैपिटल्स पे इफेक्ट आया है उन्हीं की ये आपने ट्रांसफर करने हैं. लेजर एक तरह से बनेगा आपका. ठीक है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस शो कर दीजिए. आफ्टर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
देन ये जो एंट्री है, जो सारी एंट्रीज है, ये इसको ही आपने पास आउट करना बस। ये गुडविल की एंट्री जाएगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जाएगा, और जो फर्स्ट एंट्री हमने की थी पूजास एंड दिव्यास की कैपिटल की, ये सब आप उसमें पोस्टिंग कर देना। और जो लास्ट में बैलेंसेस आएंगे, दैट इज द न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल आप शिफ्ट करेंगे बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में। ओके, तो बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, you will do up to 34 question from back exercise. Okay, thank you students, have a nice day. If you have any queries, now you can ask.